Good morning, my dear students. All of you are welcome in this morning session of English literature by Dr. Naresh Agrawal. Students, here a very beautiful poem titled At the Back of Progress, composed by Taslima Nasreen, a Bangladeshi author, poetess, and former physician who has lived in exile since 1994. So, here let me discuss in detail about the poem At the Back of Progress. This poem is indicative of the double standards of society. The poem objectifies the conditions of women in a patriarchal society which victimizes her. The poet exposes the hidden faces of development and points out the attitude of men and their dubious stands on morality. Her contention is that men's treatment of women is the same in every patriarchal society. The power structure is controlled by vehemently men, which allows her to live only at the mercy of men. However, we have to discuss the poem in detail. Dear learners, listeners, the spectators, and the audience, please listen to me very carefully. The poem begins with the description of a high ranking boss who sits in the air conditioned office. He is the person who has made sexual relations with many young girls or women in his youth. Some of these women must have been raped. He might have used them sexually against their wishes and desire. He is a prosperous businessman, and on the power of his wealth, he scheduled many women. In cocktail or business parties, he ogles lustfully at the beautiful woman very secretly and in a surreptitious manner. He is a lustful person and he looks for the girl, for woman with whom he can have sex. He fastens his eyes on the belly buttons and other body parts of women, especially feministic body parts. He invites and takes them to five-star hotels, and there he satisfies his sexual desire with different and various kinds of women. Having done this immoral deed, he returns to his home and beats his wife over small and trivial things as over ironed handkerchief or shirt collar. Actually, the poetess Nasrina ji satires on dual faces of a person who is a successful business person. Behind his success, there is immortality and degraded character. A fully deteriorated man has been projected out. In hotels, he enjoys with other women. While at home, he beats his own wife. His dual behavior to women shows that society has degraded morally. He represents the all upper class of people of society. Such type of man in general and particular are being represented in the text of the poem to project out, to bring out the tendencies of man against woman. However, in his office, the prosperous businessman person, Mr. Big, smokes, he puffs a cigarette and then becomes busy in the files. He rings to call the employees in his office. He shouts at them when there is something wrong or carelessness in their work. He orders for the tea. He drinks wine or anything else and then comments on the characters of his employees. He remarks on his service files. He writes necessary instructions and orders also for the employees. He has authorized himself, means he is an authoritative person, to give out character references to people, and the poet questions. Here really the poetess questions
the veracity of such references from a man who himself is morally correct. Here, the poetess presents the irony. There are so many people in society who are authorized to define others' characters, but they themselves are the symbol of characterlessness. Mr. Biff, in this stanza, is the symbol of modern politicians and business persons. Moreover, the poetess describes an employee who seems genuinely civilized and sophisticated person. He is always polite in his office. He seems so gentle that nobody could suspect that this fellow is a vile person. Really, he is a very vile, cunning person at home, and he goes on shouting at everybody. He is always engaged in a discussion of films, politics, art and literature, and on the issues also how someone's grandmother or mother commits suicide. He speaks gently in the office, but at home he shouts at his wife, abuses and beats her. He quarrels with his wife over small and trivial issues such as the cake of soap or pneumonia to child. Thus, the poetess reflects and shows the dual and degraded, deteriorated mentality of man. In modern times, people have dual characters. Their thinkings towards women is suppressive and exploitative, yet they present themselves as an idealist person. Further, she talks about a man who keeps a lighter in his pocket and gets a tip for his services, who divorced his first wife for sterility, second wife for giving birth to a girl, and third for not bringing any dowry. He beats his fourth wife for trivial things as green chilies or handful of rice, etc. The title is highly sarcastic and evidently mirrors the poetess' thoughts. Such treatment meted out to women at homes, their domination and suppression, do not figure in the index of economic progress and development. They are irrelevant to the progress that the society is headed towards. Thus we see the man changes woman as if he changes the clothes. Very sarcastically it is being said, very heavy-heartedly it is said that man changes woman as if he changes the clothes in daily routine. The modern society has developed mechanically and economically, and morally it has degraded to dangerous level. The above person is a symbol of common person of society. Dear students, let me read the text of the poem by Taslima Nasreen, and the title of the poem is At the Back of Progress. The fellow who sits in the air-conditioned office is the one who in his youth raped a dozen or so young girls. कवियत्री तस्लीमा नसरीन जी कह रही हैं इस कविता के फर्स्ट स्टैंजा में, द फेलो हु सिट्स, जो आदमी है ना एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, इज़ द वन, ये वो वन है, हु इन इज़ यूथ, जिसने अपनी यौवन अवस्था में रेप्ड ए डजन, दर्जनों महिलाओं से रेप किया, और 100 यंग गर्ल्स, जवान लड़कियों से, एंड एट कॉकटेल पार्टी सीक्रेटली स्टिकन विद लस्ट, और अपनी कामुक भरी आँखों से सीक्रेटली बड़ा गुपचुप तरीके से पार्टीज़ में, कॉकटेल पार्टीज़ में, फास्टनिंग हिज आइज़ ऑन लवलीज बेली बटन्स, और महिलाओं की नाभि को वो ध्यान से निहारता है, और अन्य जो महिलाओं के जनाना अंग हैं उनको ध्यान से निहारता रहता है, बड़ा चालाकी से
पार्टीज़ और कॉकटेल पार्टी। ये कवित्री बता रही हैं कि किस टाइप का वो बिजनेसमैन है जो एसी ऑफिस में बैठा रहता है। इन 5 स्टार होटल्स इट ट्राइज आउट हिज डिफरेंट सेक्सुअल टेस्ट विद ए वैरायटी ऑफ वुमेन। इस प्रकार का बिजनेसमैन 5 स्टार होटल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की लेडीज़ को ले जा कर के अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है। देन रिटर्न्स होम एंड बीट्स हिज वाइफ, और तब घर लौटता है और अपनी पत्नी को पीटना शुरू करता है बिकॉज ऑफ एन ओवर एंड हैंकरचीफ और शर्ट कॉलर। सिर्फ इसलिए पत्नी को पीट देता है घर पे वही व्यक्ति जो अन्य महिलाओं के साथ 5 स्टार होटल में रंगरेलियाँ मना रहा था, और घर पे आके पत्नी को इसलिए पीटता है कि उसने जो इस्त्री की कपड़ों पर प्रेस की उसमें कोई कमी रहेगी, रुमाल के ऊपर प्रेस में कमी रहेगी, या कलर की जो शर्ट की कॉलर है उसके ऊपर प्रेस हुई नहीं हुई, ज़्यादा हुई कम हुई, इसलिए उसको पीटता रहता है छोटी छोटी ट्रिवियल बातों पे, तुच्छ बातों पे। इन हिज ऑफिस मिस्टर बिग पफ्स ऑन ए सिगरेट। फिर एक चरित्र बताया गया है कि ऑफिस में एक बिग नाम का व्यक्ति है, वो सिगरेट को पफ करता है, किस प्रकार से स्टाइल से उसको पकड़ता है। शफल्स थ्रू फाइल्स, और फाइल्स को देखता था। रिंग्स फॉर हिज एम्प्लॉय शाउट्स, और बेल बजाता है अपने कर्मचारियों को बुलाने के लिए, चिल्लाता है उन पे, शाउट्स डिमांड्स टी एंड ड्रिंक्स, और डिमांड करता है टी और ड्रिंक्स मंगवाता है। एंड रिटर्न्स टू राइटिंग पीपल्स कैरेक्टर रेफरेंसेस, और लोगों के चरित्र के ऊपर उंगली वो स्वयं उठाता रहता है, वो व्यक्ति जो स्वयं इतना करप्ट है, इतना भ्रष्ट है चारित्रिक रूप से। हिज एम्प्लॉय स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस, और उसके जो कर्मचारी हैं वो स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस, ऐसी धीमी आवाज़ में उससे बात करते हैं दैट नो वन वुड एवर सस्पेक्ट, कोई कभी शंका कर ही नहीं सकता। हाउ एट होम, कि घर पे कैसा बिहेव करता होगा। ही ऑल्सो रेजेज हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ उठाता है। इज़ वाइल टू हिज फैमिली, कितने वाइली मैनर से, इन ए सरप्टिशियस मैनर, बहुत गुपचुप चालाकी भरे तरीके से, बड़े कनिंग वे से वो फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करता, अपनी वाइफ को पीटता, यूँ करता है। बट विद हिज बडीज ऑन द पोर्च और एट ए मूवी इंडल्जेस इन लाउड harangues on politics, art, literature, and how some female, his mother, grandmother or great grandmother committed suicide, और किस प्रकार से उनके परिवार की महिलाओं की दुर्दशा बताता है कि ऐसे समाज की तसरीना जी कहानी बता रही हैं कि जिस समाज में महिलाएं अपने पिता के परिवार में सेफ और सुरक्षित नहीं हैं, उनकी डॉटर, आगे डॉटर, ये एक क्रॉनिक स्टडी है कि महिलाओं को किस प्रकार से दुर्दशा की जाती है। कई महिलाएं तो सुसाइड कर गई हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर, मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। बिडिंग गुड बॉय टू हिज बडीज, और फिर गुड बॉय कहता हुआ ही रिटर्न्स होम, घर लौटता है। बीट्स हिज वाइफ, घर लौट के अपनी पत्नी को पीटता है। ओवर ए बार ऑफ सोप ऑफ द बेबीज़ निमोनिया, बच्चे को निमोनिया हो गया, साबुन कहाँ रखा है, छोटी छोटी बातों पत्नी को पीट देता है। नेक्स्ट डे एट वर्क ही प्लेजेंटली ब्रिंग्स द टी, एट वर्क ऑफिस में ही प्लीजेंटली ब्रिंग्स द टी, और एक ऐसे व्यक्ति की बात बताई जा रही है जो चाय वगैरह परोसता है। कीप्स द लाइटर इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में लाइटर, अग्नि जलाने वाला यंत्र लाइटर रखता है। रिसीव्स ए टिप ऑफ कपल ऑफ टका, और टका एक पैसे की, जो बांग्लादेश में जैसे अपने यहाँ पैसा है वहाँ टका है, एक करेंसी, लोएस्ट करेंसी, और वो किस प्रकार से वहाँ टका टका करके टिप के अंदर लोगों को चाय सर्व कर करके, अन्य चीज़ भोजन सर्व करके कैसे प्राप्त करता है। एंड टेल्स नो वन, किसी को ये बात नहीं बताता दैट ही डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ। इतना मीठा मीठा बोलता है ये, भोजन और चाय परोसने वाला, दूसरों के साथ में जेब में लाइटर रखता है ना, और टिप भी ले लेता है लोगों से, पर ये बात नहीं बताता ही हैज़ डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ फॉर हर स्टर्लिटी, पहली पत्नी को इसलिए डिवोर्स कर दिया कि वो बांझ थी। हिज सेकंड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, और हिज सेकंड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, दूसरी पत्नी को इसलिए उसने तलाक दे दिया कि उसने बेटी को जन्म दिया था। हिज थर्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग ए सफिशिएंट डाउरी, और तीसरी महिला को इसलिए त्याग दे दिया, त्याग पत्र तलाक दिया
कि वो डोरी दहेज नहीं लेके आई थी। नाउ विद वाइफ नंबर 4, और चौथी नंबर पत्नी की बात बता रहा है, वो कवित्री बता रही है विद वाइफ नंबर 4 ही अगेन हैज समवन, और वो उसके साथ में कुछ किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं। ही अगेन ही समवन टू बीट ओवर ए ग्रीन चिल्ली और ए हैंडफुल ऑफ राइस। किस प्रकार से वो अपनी पत्नी को पीटता है कि वो एक हरी मिर्च भी उसने कहाँ रख दी, और उसके साथ में उसको बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता। इस प्रकार से इस कविता के टेक्स्ट में ये सब बातें बताई गई हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना कि पुरुष प्रधान सोसाइटी के अंदर पुरुष महिलाओं के साथ में किस प्रकार दोहरापन बिताता है, क्या दोगलापन करता है, कि दूसरी महिलाओं के साथ वो किस किस प्रकार से अटखेलियाँ करता है। अपने आप को पैसिफाई करने के लिए वो 5 स्टार होटल्स में जाता है, अलग अलग प्रकार के वो सारी सिस्टम उन्होंने बताए हैं। लेकिन एक ऐसा पात्र जो हमेशा एसी ऑफिस में बैठा रहता है, और कितनी महिलाओं के लड़कियों के साथ में उसने मॉडर्न सोसाइटी बड़े हाई फाई इंटरनेशनल होटल्स के अंदर जाके उसने सब डिटेल में चर्चा होगी क्या कुछ किया। लेकिन वो व्यक्ति दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाना जानता है, खुद के बारे में महसूस नहीं करता। आगे ये हमारी जो कवित्री हैं नसरीन जी, इन्होंने सोसाइटी में देखा कि एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने पहली पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दिया कि वो बांझ थी, उसे बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ, दूसरी को भाने से, तीसरी को भाने से, चौथी को भी वो किस प्रकार से ट्रीट करता है। तो ये पुरुष प्रधान सोसाइटी एक इस प्रकार से प्रेजेंट की गई है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग सोसाइटी एंड आज तो खैर मॉडर्निटी आ गई है, और हमें इस प्रकार के समाज और इस प्रकार की सोसाइटी को तिलांजलि देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पुरुष को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उसकी बीवी है, कल उसी प्रकार से उसकी पत्नी को भी ट्रीट किया जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा लिखा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड 7 तरंगों से उत्पन्न हुआ है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, अर्थात जिन 7 स्वरों से आवाज़ जितनी ऊपर उठती है, जितना पानी समुद्रों से ऊपर उठता है आसमान में, उतना ही पानी आसमान से धरती पर आना आवश्यक, ज़रूरी और अवश्यंभावी होता है। यदि आप किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी पत्नी और आपकी बेटी के साथ भी कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति वैसा व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक नारी का विशेष महत्व दिया गया है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात हमें ये बात दिल में बसानी पड़ेगी, अन्यथा आप ये चाहें ना कि आप पुरुष हैं और दूसरों की महिलाओं के साथ उल्टा सीधा बर्ताव कर लें, आप भूल जाएं प्रकृति के 7 स्वर, वो विशेष परिस्थिति स्वयं आपके ऊपर एक ना एक दिन लौट करके आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे, ये हमने हमारे रायसीनगर, पदमपुर, गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर और इधर पंजाब, पूरा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, नॉर्थ इंडिया के लिए विद्यार्थियों के लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। अब हिंदी और इंग्लिश में जब दोनों करना पड़ता तो मेरा गला खुद का ही बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को समझाना है, उनको परीक्षा पास करवानी है, इसलिए हमें बाइलिंगुअल होकर पढ़ाना पड़ता है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें उन विद्यार्थियों की चिंता है जो हमसे बहुत आशा लगा करके हमसे पढ़ने आते हैं, बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, और आज तक हज़ारों की संख्या में बच्चों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप पूर्ण ध्यान से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।